So let's begin. Rules of the assertive sentences. In previous class, I told you many rules related to tenses of the assertive sentences. How can we change direct to indirect of sentences into assertive sentences. हमने आपको जैसा कि बताया है आपको पहले भी कि जो हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने का रूल होता है, जो हमारा नियम होता है, वो हम टेंस के बेसिस पे, पर्सन के बेसिस पे और बहुत सी चीज़ें हमें माइंड करनी होती है, ध्यान में रखनी होती है कि कौन से टाइप का सेंटेंस है. आफ्टर ऑल दैट यू कैन चेंज easily direct to indirect sentences, and to change all sentences we should know all the rules of this narration by heart. So let's begin today's video, today's lecture related to assertive sentences, and in this video I am going to taught you how can we change modals etc. like how can we change can and shall, and अगर सेंटेंस में ये सब मिल रहे हैं तो वो उनको कैसे डायरेक्ट से डायरेक्ट में बनाते हैं. सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी डिले. कम द पॉइंट. रूल इज if sentence, if in direct speech there is could, there is shall, will, can, may, then we will change all these respectively. Shall into should, will into would, can into could, and may into might. When you change direct narration into indirect narration of assertive sentences. क्या ये किसी भी सेंटेंस में हो, तो अगर ये जो है आपको मिल रहे हैं शैल, तो आप जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वो शुड हो जाएगा. शुड होने के बाद अगर ये विल मिला तो वो वुड हो जाएगा, कैन मिला तो कुड हो जाएगा, मे मिला तो वो माइट होगा. बट देयर विल बी नो चेंजेस इफ यू विल फाइंड in direct speech, in direct narration, all these words like अगर आपको डायरेक्ट में ही ये should, would, could, might ये मिल जाए और must मिल जाए, ought मिल जाए, तो आप इन्हें जो है as it is indirect में रख देंगे. there will be no changes in all these things. अब अगर ये मिल रहे हैं तो ये इसमें चेंज हो जाएंगे, बट अगर ये मिल रहे हैं डायरेक्ट में तो ये जो है इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा. इफ यू विल फाइंड इन डायरेक्ट नरेशंस ऑल दीज वर्ड्स लाइक मस्ट, ought, should, would, could, might, then there will be there is no change into indirect speech, into indirect speech. बट अगर आपको जो है शैल मिल रहा है, विल मिल रहा है, कैन मिल रहा है, मे मिल रहा है, तो ऑब्वियसली आप इनको जो है इनमें चेंज कर दोगे. चेंजेस इनटू शैल चेंज टू शुड, and the will changes into would, can changes into could, may changes into might. Okay. For example है
अपनी माँ को बताया कि उसकी जो दोस्त है स्कूल आए। अब यहाँ पे हमने आपको क्या बताया कि अगर आपका ये पार्ट मीन्स here is two part of this direct narration. First one is what reporting one and second part is reported speech, and all these rules will be followed when reporting verb will be into past tense. अगर हमारा reporting verb past में नहीं होगा, present या future में होगा, then there will be no changes in the reported speech tense. reported speech के tense में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। कब? when reporting verb will not be into past tense then. Otherwise it will be changes like these rules what I have told you, what I have taught you. कब इसको चेंज करते हैं हम इनडायरेक्ट में, इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं। Radha said to Chandra, told her mother, you will write her conjunction that her friend and हम आपको यहाँ पे रूल क्या होता है किसके बारे में? विल के बारे में। तो यहाँ विल के हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग घुस जाएगा that her friend would। कम होता है तो कम की जगह पे because this word is so much nearness and you will write in place of these words distance showing words like कम की जगह पे go हो जाता है that her friend would go to school। हम आगे बताएंगे आपको कैसे ये चेंज होते हैं ये वर्ड्स। अब आप यहाँ पे अगर सब्जेक्ट चेंज करके शैल लिख लेंगे तो शैल की जगह पे शुड हो जाएगा। वो भी आप एग्जाम्पल देख लीजिए एक। Example related to shall Mohan said to me, comma, double comma, I shall go to swim। I shall go to swim। इसका क्या हो जाएगा? Indirect according to rule। Mohan told Mohan told me that ये तो आई की जगह पे अकॉर्डिंग टू पर्सन यहाँ पे हो जाएगा। हम आपको बाद में अगले वीडियो में इसको समझाएंगे कैसे पर्सन चेंज होता है, बट मैं यहाँ पे बस लिख दे रही हूँ, आप उसको देखिए। दैट पर्सन अकॉर्डिंग टू दैट ही, बिकॉज यहाँ पे ही के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे तो ही हमारा क्या लेता है, शैल लेता है या विल लेता है, तो विल लेता है। सो हम यहाँ पे भले ही यहाँ पे शैल है तो इसका शुड होना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमको राइट करना तो यहाँ पे वुड लिख लेंगे। ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। ये चीज़ें आपको माइंड करनी है। सिर्फ ये रटाया चीज़ की हम जो है शैल का सब विल का वुड कर लेंगे तो दैट्स नॉट गुड थिंग। आपको ये भी देखना है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये होता है, दिस इज कॉमन रूल, बट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट व्हेन यू आर गोइंग टू राइट डायरेक्ट इनडायरेक्ट, देन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट you will follow the rules. So here is the subject he, why he comes, because related to rules of persons, person
जाएगा दैट ही वुड गो टू swim. ओके, एक दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, मस्ट वाला लिख देते हैं. They said they said he must help you. Okay, तो what will be the indirect of this sentence? Indirect इसका होगा he sorry ये they said conjunction में यहाँ पे राइट करेंगे that was this is third person so there will be no changes. और ये हमको आगे बताएंगे पर्सन के रूल्स थोड़े डिफिकल्ट है. that he must help you. Okay, so you are looking here that there is no changes into must. Okay, this is always this is also models but mainly will be changes into shall, into should, will into would, and may into might, can into could, but there will be no changes into must, ought, could, should, would, etc. going to give you another example of can. Can कैसे हम चेंज करेंगे वो भी आप देख लीजिए. can और could वाला ही. डायरेक्ट स्पेस होते डायरेक्ट मेंशन जैसे my brother said I can cross the river. I can cross this river. Then नाइट क्या हुआ इसका? My brother said that brother है तो यहाँ पे ही हो जाएगा. फर्स्ट पर्सन से ना आई भी फर्स्ट पर्सन होता है. that he कैन का क्या हो जाएगा जैसे मैंने बताया था? could. he could cross that. this का that होता है that river. My brother said that he could cross that river. और अगर ये हो जाता सीधे could, अगर यहाँ पे होता सपोज दैट इस पार्ट में अगर could रहेगा तो यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा. no changes and you will write same can. जैसे यहाँ पे could है तो could का सीधे हम could लिखते हैं जैसे हमने must का. So this was all about this related to can, could, shall, should, will, would and must, ought. अगर आपको ये वर्ड्स मिलते हैं आपको डायरेक्ट स्पीच में तो आप इस तरह का रूल फॉलो करोगे. यू विल फॉलो ऑल दीज रूल्स and I hope you will keep all these rules in your mind. Thanks a lot for for supporting me. और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने जो इतना एक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके इतनी हेल्प करी जिससे मैं मोटिवेट होती हूँ कि मैं आगे कुछ आप लोगों के लिए थोड़ी सी मेहनत करूँ और थोड़ा और आप लोगों के लिए कुछ प्रोवाइड कराऊँ. सो इस तरह से आप अपना जो है कंट्रीब्यूशन मुझे जो दे रहे हैं उसके लिए थैंक्स अ लॉट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ like and share and subscribe. Have a good day.